Hi everyone, today in this video we are going to discuss for 8th chapter of 12th standard. The name of chapter is Journey to the End of the Earth. And this chapter has been divided into 3 parts. First part is related to its description. Second part is related to human impact on the environment or the particular area which is going to be discussed here. Walk on the ocean. This is the last portion of this chapter. First of all, we are going to discuss about the writer and the theme of this story or this chapter. The writer of this chapter is Tisani Doshi. Tisani Doshi was born in 1975 in Chennai, formerly known as Madras. So Tisani Doshi was born in 1975 in Chennai. So we can say that Tisani Doshi was an Indian. And see, the gender of this writer is female. So the gender of this writer is feminine. She was a female. She has published poems, essays and short stories. So we can say that she was a writer, she was an essayist and she was a poet. She has been the lead dancer also in Chandralekha troupe. So she was a lead dancer in Chandralekha troupe. She danced also. Now we are going to discuss about the theme of this chapter or the central idea of this chapter. In this lesson, Tisani Doshi explains how the Antarctica is the appropriate place to know more about the Earth's past. So here we are going to discuss about the geological conditions of Earth at this time and before many years. Present and future, we are also going to discuss about the present condition of this, and we will also try to understand what impacts will be there in future on this land. She exhorts us to take care of the small things so that the big problems about environmental issues may easily be handled. So this topic is going to be about environmental issues. Means the problems which are being created by human being should be dealt with strictly, and we should be sensible to use the natural resources so that we can avoid many problems related to environmental issues. And our earth remains a place worth living for animals and human beings for centuries to come. And here she also threats in the end of this chapter that if we do not take care of the earth in that condition, it would not be worth living for animals and human beings for upcoming centuries. So we can say that this is the central idea of this story or this chapter. She explains about environmental issues and she wants us to know about all these things, and we should also try to understand the relevance of the environment, and we should try to improve the things which are going to be against of this planet. Here the first portion is जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. इसका मीनिंग होता है पृथ्वी के अंतिम छोर तक की यात्रा. टू डिनोट्स डेस्टिनेशन और डायरेक्शन. या द जर्नी विच इज़ बीइंग डन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्थ. तो जो अर्थ का जो एंड है, जो अंतिम छोर है जो मैप में, हालांकि जो अर्थ है वो राउंड है तो उसका कोई कॉर्नर नहीं है, कोई छोर नहीं है, इसका कोई एंड पोर्शन नहीं है. बट जब हम अगर मैप के बारे में बात करते हैं, जब मैप देखते हैं हम, ठीक है, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या मान लेते हैं, एंड मान लेते हैं. हालांकि जो ये एंड होता है वो लास्ट में इससे कनेक्टेड रहता है. ठीक है, जिस तरीके से हम चाइना और जो अमेरिका है उसकी कंडीशन को अगर मैप में देखते हैं तो
जियोलॉजिकली जब मैप पे देखते हैं तो वो काफ़ी दूर होते हैं, यहाँ से लगभग यहाँ तक होता है, परंतु जब उसके रियलिटी को देखते हैं हम तो वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देते हैं जितना कि वो मैप में दिखते हैं। तो ये जियोलॉजिकल कंडीशन है इन दोनों कंट्रीज़ की। तो ऐसे ही जो एंड माना गया है यहाँ पे, वो जो साउथ पोर्शन है उसको माना गया है। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और यहाँ पे साउथ पोर्शन होता है। तो यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग जो एंड माना गया है यहाँ पे इस स्टोरी में, वो कौन सा पोर्शन है, वो साउथ पोल है जहाँ पे अंटार्कटिका है। इस चैप्टर को ध्यान से देखना। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने अपने आप को जो रशियन रिसर्च वेसल था, जो रिसर्च करने वाला शिप था, वेसल मीन्स होता है शिप, जहाज, उसमें मैंने अपने आप को चढ़े हुए पाया या यात्रा करते हुए पाया। द एकेडमिक सोकल्स्की, और जो शिप था उसका नाम क्या था, एकेडमिक सोकल्स्की। तो यहाँ पे एकेडमिक जो वर्ड यूज़ किया गया है उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग से है। के की जगह पे इन्होंने सी की जगह पे के यूज़ कर रखा है, बट हमें यही लिखना है क्योंकि ये क्या है, ये जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एकेडमिक वर्ड वो नहीं है। हालांकि ये सिंबल उसी का है, उसी का ये मीनिंग दे रखा है, ये एजुकेशन से रिलेटेड ये शिप है। परंतु अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हमें यही स्पेलिंग राइट करनी है, ऐसा नहीं कि मिसप्रिंट है। तो इस वर्ष की शुरुआत में मैंने रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम एकेडमिक सोकल्स्की है उसमें चढ़े हुए पाया या यात्रा करते हुए पाया। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका, जो कि दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे ज़्यादा हवा चलने वाले कॉन्टिनेंट, दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे ड्राइएस्ट का मीनिंग होता सूखा, और सबसे ज़्यादा हवा चलने वाला जो क्षेत्र है दुनिया का, अंटार्कटिका, उसकी तरफ बढ़ते हुए पाया। तो ये किसकी तरफ बढ़ रही, हीट का मीनिंग होता है बढ़ना, आगे बढ़ना। कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट, ये कॉन्टिनेंट की क्या है, क्वालिटीज़ है। कोल्डेस्ट मीन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड हो, ड्राइएस्ट का मीनिंग होता है जो सूखा हो। मान लीजिए जो ठंडा है वो सूखा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे ड्राइएस्ट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, और रेनफॉल कई वर्षों से यहाँ पे नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसको ड्राइएस्ट प्लेनेट कहा गया है, और सबसे ज़्यादा हवाएं यहीं पे चलती हैं। तो सिंपल जो क्वेश्चंस जो अराइज हो सकते हैं इस पोर्शन से वो क्या है, व्हाट इन विच वेसल डिड द राइटर डू हर जर्नी, द नेम ऑफ दैट वेसल इज एकेडमिक सोकल्स्की and it was related to Russia. Where were they heading? कहाँ पे आगे बढ़ रहे थे? So the answer is the writer with her assistants was heading towards the Antarctica, which is the coolest, driest and windiest continent in the world. Next one. My journey began from 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। तो इनकी जो जर्नी है वो मद्रास में जो नॉर्थ इक्वेटर है वहाँ से 13.09 डिग्री से शुरू हुई थी। ये हमें याद ही रखना है। इन्होंने जर्नी कहाँ से शुरू की, मद्रास से, और यहीं पे इनका जन्म हुआ था चेन्नई में। तो इनकी यात्रा शुरू होती है 13.09 डिग्री से, जो कि मद्रास के नॉर्थ इक्वेटर 13.09 से स्टार्ट होती है, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पोस्ट पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स।
तो इनकी जो यात्रा थी इसमें 9 टाइम जोन्स थे। टाइम जोन का मीनिंग होता है जो किसी भी कंट्री का वो क्षेत्र जिसके अकॉर्डिंग उस पूरी कंट्री का टाइम डिसाइडेड होता है या डिसाइड होता है। तो मान सकते हो कि लगभग यहाँ से 9 कंट्रीज़ या उन कंट्रीज़ के अलग अलग टाइम जोन्स थे, वहाँ से होकर ये गुजरे हैं। फिर 6 चेक पॉइंट्स थे, चेक पॉइंट जहाँ पे उस शिप को चेक किया गया था। इसके साथ में 3 वाटर बॉडीज़ जो थी उनको भी उन्होंने इन्वॉल्व किया था, उसकी भी उन्होंने यात्रा की थी। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और इतने ही जो इकोस्फीयर्स थे उनकी भी उन्होंने यात्रा की, उनसे होके आगे निकले। इकोस्फीयर का मीनिंग होता है जैवमंडल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर राइट करते हैं 3, 6, 9, ठीक है, यस 9, 6, 3, तो यहाँ पे 9 क्या हो गया है, 9 है टाइम जोन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6 क्या है, चेक पॉइंट्स, और 3 क्या है, वाटर बॉडीज़। तो एक तरीके से 3 की जो टेबल है अगर उसको अपोजिट राइट करके हम इन चीज़ों को याद रखें तो आसानी से याद हो जाएगा। तो 3 वाटर बॉडीज़ है, 6 चेक पॉइंट्स है और 9 टाइम जोन्स है। यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। एंड देयर आर ऑल्सो इकोस्फीयर्स। इतने ही क्या थे, इकोस्फीयर्स थे कितने, 3 इसको इकोस्फीयर्स। तो इकोस्फीयर हो जाने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ थी, लैंड था, और साथ ही साथ में जो माउंटेन्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, जंगल हो सकते हैं। तो अलग अलग इकोस्फीयर्स में से होकर वे गुजरे हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। वास्तव में जिस समय मैंने अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में कदम रखा था तब मैं 100 घंटे से भी ज़्यादा समय से यात्रा कर रही थी, जिसमें कार, एरोप्लेन और शिप की यात्रा शामिल थी। इनकी जो जर्नी थी वो कितने आवर्स तक चलती है, वो 100 आवर्स तक चलती है। और कौन कौन से मीन्स थे जिनके थ्रू उन्होंने यात्रा की है, तो वो कार है, एरोप्लेन है और शिप है। मीन्स कार जो है वो लैंड पे चलती है तो इन्होंने लैंड, फिर एरोप्लेन है तो ये वो है स्काई, एयर, और लास्ट वन इज शिप दैट इज़ वाटर। तो ये जो इकोस्फीयर से अलग अलग है इनमें से होकर उन्होंने यात्रा की है, ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। वर्ष की शुरुआत में ये रशियन रिसर्च वेसल में, जिसका नाम एकेडमिक सोकल्स्की है, उसमें बैठकर यात्रा अपनी शुरू करते हैं अंटार्कटिका के लिए। अंटार्कटिका का क्वालिटी ये है कि ये सबसे ठंडा है, सबसे सूखा और सबसे ज़्यादा हवा चलने वाला कॉन्टिनेंट है। इन्होंने अपनी यात्रा मद्रास स्टेट से शुरू की थी, जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में है, और यहाँ से जहाँ से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी वो 13.09 डिग्री पे स्थित है। इन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया था अपनी जर्नी के दौरान, 6 चेक पॉइंट्स आए थे, चौकियाँ आई थी, और 3 समुद्रों को इन्होंने या वाटर बॉडीज़ को इन्होंने क्या किया था, क्रॉस किया था। और लगभग 3 जो इकोस्फीयर्स थे उनको भी इन्होंने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन ये होगी कि कौन कौन सी चीज़ों को इन्होंने क्रॉस किया है। फर्स्ट, राइटर जो था वो कौन से शिप में बैठ के यात्रा कर रहा था, तो उसका नाम है एकेडमिक सोकल्स्की। ये कहाँ का था, तो ये रसिया का था। ये किस की ओर बढ़ रहे थे, तो ये अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहे थे। और अंटार्कटिका की क्वालिटीज़ क्या है, तो ये सबसे ठंडा है, सबसे ज़्यादा सूखा और सबसे ज़्यादा हवा चलने वाला कॉन्टिनेंट है। इन्होंने यात्रा कहाँ से शुरू की, तो इन्होंने यात्रा मद्रास के नॉर्थ इक्वेटर से शुरू की थी 13.09 डिग्री से। और जब ये अंटार्कटिका पहुँचते हैं, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे पहुँचते हैं, तब तक इन्होंने 100 आवर्स की यात्रा कर ली थी। और यात्रा करने के मीन्स कौन कौन से थे, तो यहाँ पे कार, एरोप्लेन और शिप, तीनों माध्यमों से इन्होंने अपनी यात्रा की थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑफ फेसिंग
on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was a relief. तो जो मेरा पहला इमोशन था अंटार्कटिका के विशाल वाइट लैंडस्केप को फेस करने का और उस ब्लू कलर के बिना किसी व्यवधान के हराइजन को फेस करने का, वो था रिलीफ का। जैसे ही ये अपनी यात्रा कंप्लीट करके अंटार्कटिका पहुंचते हैं तो उनका जो फर्स्ट इमोशन था वो क्या था, वो रिलीफ था। इनको काफ़ी सुकून मिलता है वहाँ जाकर, और सुकून किसकी वजह से मिलता है, जो एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप था। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा विस्तृत, वाइड, तो जो सफ़ेद जो चादर थी बर्फ़ की उसको देखकर उनको सुकून मिलता है। और साथ ही साथ जो अनइंटरप्टेड ब्लू हराइजन था, बिना किसी व्यवधान के नीले कलर का जो क्षितिज था। हराइजन वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें धरती और आकाश मिलते ही से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसको देखकर उनको क्या मिला, रिलीफ मिला। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसके साथ में ही उनको तुरंत ही गहरा आश्चर्य हुआ। प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा, डीप। तो पहले रिलीफ होता है और उसके बाद क्या होता है, इनको सरप्राइज होता है। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और जो आश्चर्य था वो उसकी विशालता पे था। किसकी वजह से उनको वंडर होता है, आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है, तो वो उसकी इमेंसिटी पे होता है। इमेंसिटी मीन्स विशालता, कि कितना विशाल ये बर्फ़ का कॉन्टिनेंट था। इट्स आइसोलेशन, इसके अकेलेपन पे, एकाकीपन पे। आइसोलेट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अकेला कर देना। बट mainly एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम when India and Antarctica were parts of the same land mass। परंतु जो मुख्य रूप से उनको सरप्राइज होता है वो इस बात पे था कि किस तरीके से एक समय पर भारत और अंटार्कटिका दोनों एक ही लैंड मैस का या लैंड मास का हिस्सा थे, भाग थे। तो अंटार्कटिका और इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी स्टार्टिंग में, या हम मानते हैं कि जो पार्ट्स, वर्ल्ड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, तब ये दोनों के दोनों जो पोर्शन थे, जो पार्ट थे, वो एक ही हिस्से में थे, दुनिया के एक ही हिस्से में थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, जो अंटार्कटिका था वो तो अपने स्पेस पे पड़ा रहा, परंतु इंडिया जो था वो नॉर्थ की तरफ पुश होता गया। $650 million years ago, 650 मिलियन वर्ष पहले, जायंट amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल, जायंट मीन्स होता है यहाँ पे ह्यूज, बिग। एमेलगेमेटेड का मीनिंग होता है एकीकृत, जो एक साथ में शामिल हो। सुपर कॉन्टिनेंट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा विशाल जो क्षेत्र होता है, या जिसको बोलते हैं विशाल महाद्वीप। एग्जिस्ट का मीनिंग होता है अस्तित्व में होना। तो लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 65 करोड़ साल पहले, जो वर्तमान अंटार्कटिका के चारों तरफ एक विशाल एकीकृत महाद्वीप है गोंडवाना, वास्तव में वह अस्तित्व में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो सेंटर था इसका, जो केंद्र था, वो लगभग आज का जो अंटार्कटिका है उसके पास में था। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो जियोलॉजिकल कंडीशंस है अर्थ की, वो चेंजेस होती रही है कंटिन्यूसली। तो इंडिया और अंटार्कटिका पहले एक ही
सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे जिसका नाम क्या था, गोंडवाना। ये लगभग 6.5 मिलियन वर्ष पहले था, 650 मिलियन वर्ष पहले था, मतलब लगभग 65 करोड़ साल पहले की बातें हैं, जब एक विशाल एकीकृत साउथ दक्षिणी क्षेत्र का महाद्वीप जो था गोंडवाना, वो वास्तव में एग्जिस्ट करता था और ये प्रेजेंट डे के अंटार्कटिका के लगभग केंद्र में था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट दैन। उस समय जो चीज़ें थी, जो बातें थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। ह्यूमन्स हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। तब तक जो मानव है वो वैश्विक परिदृश्य में नहीं आए थे। तो इस समय लगभग 65 करोड़ साल पहले ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस इस धरती पे नहीं था। तब की बातें हैं ये कि अंटार्कटिका और इंडिया एक ही कॉन्टिनेंट, जिसको बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, के पार्ट थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। और जो क्लाइमेट था वो ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोरा और फोना की किस्में थी। फ्लोरा और फोना, फ्लोरा का मीनिंग होता है जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, और फोना वर्ड यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए, ये क्रीचर्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक वैरायटीज़ में फ्लोरा था, वनस्पतियाँ थी और जीव जंतु थे, वन्य जीव। फोना मीनिंग वन्य जीव या जीव जंतु। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। लगभग 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। थ्राइव का मीनिंग होता है फलना फूलना, मतलब लगभग 500 मिलियन वर्षों तक, लगभग 50 करोड़ साल तक जो गोंडवाना लैंड था वह एग्जिस्टेंस में रहा। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, परंतु लगभग उस समय तक जब डायनासोर्स विलुप्त हो चुके थे, वाइप आउट का मीनिंग होता है विलुप्त हो जाना, और एनिमल्स की जो मैमल्स जो स्तनधारी है उनकी जो एज थी, उनका जो युग था वो बीच में था। तो उस समय की बातें हैं। तो लगभग 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना फलता फूलता रहा, परंतु उस समय जब डायनासोर मिट गए या विलुप्त हो गए और स्तनधारियों का युग प्रारंभ होने वाला था, द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। तो जो लैंड मास था, जो ये महाद्वीप था विशाल, वह अलग अलग देशों के रूप में सेपरेट होने के लिए बाध्य हो गया और वह विश्व का ऐसा स्वरूप लेने लग गया जिससे कि हम आज इसको जानते हैं। तो 50 करोड़ साल तक गोंडवाना एग्जिस्ट करता है, और जिस समय डायनासोर्स इस दुनिया से चले जाते हैं, ये एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, और मैमल्स की जो एज है वो शुरू होती है, तब ये जो लैंड मास है, लैंड मास कौन सा है यहाँ पे, गोंडवाना। जो गोंडवाना है वह कंट्रीज़ में सेपरेट होने के लिए बाध्य हो जाता है, मतलब इस पर फोर्स डाला जाता है, इस पर दबाव डाला जाता है, किसका, अर्थ का जो इंटरनल जो सरफेस है उन सब का, या एक्सटर्नल जो सरफेस है उन सब का, इस पर प्रेशर आता है और उसकी वजह से ये कंट्रीज़ में सेपरेट होने लग जाता है। ये वैसा ही आकार लेने लग जाता है विश्व का जैसा कि हम आज इसको जानते हैं। तो इस ऐसे में देखा है कि लगभग 65 करोड़ सालों तक जो सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना है वो एग्जिस्ट करता रहा था, और ये लगभग आज का जो अंटार्कटिका है वहाँ पे स्थित था। और जो वर्तमान में अंटार्कटिका है, मीन्स जो पहले का गोंडवाना लैंड था, वहीं पे अंटार्कटिका और इंडिया एक दूसरे के साथ में
इंटरकनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स थे या सुपर कॉन्टिनेंट्स का एक ये पार्ट थे। उस समय जो थिंग्स थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं था और क्लाइमेट जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, और यहाँ पे वेजिटेशन और वन्य जो जीव थे उनकी वैरायटीज़ थी। परंतु 500 मिलियन वर्ष तक ये गोंडवाना लैंड जब थ्राइव कर चुका होता है और डायनासोर्स इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, तब मैमल्स का एज स्टार्ट होता है, और जो लैंड मास था, जो गोंडवाना था, वह अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट होने लग जाता है, और ये ऐसी ही शेप लेने लग जाता है जैसा कि हम आज इस दुनिया को जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। वर्तमान में अंटार्कटिका को विजिट करने का मतलब है उस इतिहास का एक हिस्सा हो जाना। मीन्स हमें पता होता है कि अंटार्कटिका जो है वो गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है और इंडिया भी इसी का हिस्सा था, तो हम उस हिस्ट्री में खो जाते हैं। देखते हैं कि उस समय जैसी कंडीशन थी वो लगभग कंडीशंस आज भी है। To get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading, इस बात का पता लगाने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं और संभवतः हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अंटार्कटिका में इस समय जाना इतिहास का एक भाग बनने जैसा है, तथा ये समझना है कि हम कहाँ से आए हैं और हम संभवतः किस ओर जा रहे हैं। It's to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian granite silts. यह समानांतर जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं उनकी मोड़ों और प्रारंभिक भूमिक युग में बने ग्रेनाइट कवच के महत्व को समझना है। इस चीज़ को अच्छे से समझना वापस। कॉर्डिलेरन का मीनिंग होता है समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जो एक दूसरे के आसपास में चलती है। जिस तरीके से मान लीजिए एक माउंटेन है और उसी के पास में इसी के समानांतर दूसरा अगर माउंटेन चलता है, तो ये जो माउंटेन्स हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? कॉर्डिलेरन। तो कॉर्डिलेरन जो माउंटेन सीरीज थी उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्ट्स थे, सिल्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? कवच। प्री कैम्ब्रियन का मीनिंग होता है प्रारंभिक भूमिक युग में जो बना हुआ था, जो स्टार्टिंग जो एज थी उसमें जो चीज़ें बनी हुई थी, कवच जो बने हुए थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसका जो महत्व है किस चीज़ का, जो समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं या इनकी जो परतें हैं उनका, और प्रारंभिक भौतिक काल में बनी जो ग्रेनाइट कवच है उनको समझना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, साथ ही साथ में जो ओजोन है उसको भी हम समझते हैं यहाँ आकर, और कार्बन का जो उद्गम होता है और विलोपन होता है उसको भी समझते हैं। तो ओजोन किस तरीके से जनरेट होती है उसके बारे में, कार्बन किस तरीके से जनरेट होता है इसके बारे में, और ये दोनों चीज़ें कैसे एक्सटिंक्ट कर जाती हैं, किस तरीके से विलोपित हो जाती है, उनके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो ओजोन और जो कार्बन का जो शुद्ध अध्ययन जो किया जाता है, स्टडी या इन पे रिसर्च की जाती है, वो कहाँ पे बेस्ट मानी जाती है? वो अंटार्कटिका में बेस्ट मानी जाती है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards
jamming against Asia to buckle its crest and frame the Himalayas. South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. जब आप ये सोचते हैं कि ऐसा 10 लाख वर्षों में हो सकता है, 1 million years मीन्स 10 lakhs years, जब हम ये सोचते हैं या आप ये सोचते हो कि ये सब केवल 1 मिलियन वर्ष में हो सकता है, 10 लाख वर्षों में हो सकता है, तो सिर चकरा जाता है। माइंड बोगलिंग का मीनिंग होता है सिर चकरा जाना। इमेजिन, कल्पना कीजिए, भारत को उत्तर की ओर एशिया की तरफ कसकर धकेला जा रहा है। उसका मीनिंग क्या होता है? धकेलना। इंडिया जो है उसको नॉर्थ की तरफ धकेला जा रहा है, या ये नॉर्थ की तरफ पुश हो रहा है, और इसके भूपटल को पिचकाते हुए हिमालय बन रहा है। ठीक है, तो भारत को ऐसा माना जाता है कि अगर ये ऐसा मानते हैं, हम सोचते हैं, थोड़ा सा अगर इमेजिन करते हैं क्या, कि इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ पुश हो रहा है, ये एशिया की तरफ क्या करता है, जैम हो जाता है, और इसकी जो क्रस्ट होती है वो बकल करते हुए हिमालयाज़ को बना देती है। तो हिमालय का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है? जो इंडिया का जो पोर्शन है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता जाता है, और नॉर्थ साइड में जो कॉन्टिनेंट होता है ये इससे टकराता है, और ये जैसे ही इससे टकराता है तो एक थियरी ये है कि जो हल्की परतें होती है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, और जो भारी परत होती है वो नीचे की तरफ धंस जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे हिमालयाज़ का निर्माण हो जाता है। तो जैसे ही इंडिया ड्रिफ्ट होते हुए, तैरते हुए नॉर्थ साइड में जाता है, तो यहाँ से ये सदर्न जो पार्ट होता है, साउथ पार्ट से ये नॉर्थ की तरफ जाता है, तो यहाँ से नॉर्थ की जो लैंड होती है, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उससे टकराती है, और जैसे ही ये इस पोर्शन से टकराता है, यहाँ वाला पोर्शन इंडिया, ऐसे आगे चलते, तो यहाँ पे जो हिमालयाज़ हैं उनका निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये जो एक दूसरे की परत टकराती है, तो इसमें से जो एक परत होती है वो नीचे की तरफ धंस जाती है, और दूसरी परत जो होती है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो ये हिमालयाज़ का निर्माण होने का कारण है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका है वह नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए तैर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और ड्रेक गलियारे को खोलकर ठंडी ध्रुवीय चक्रीय धाराएं बनाते हुए अंटार्कटिका को ठंडा व बंजर और विश्व के निचले भाग में रखे हुए हैं। तो अंटार्कटिका जो है वो फ्रिजिड है, जमा हुआ है, डिजलेट है। डिजलेट का मीनिंग होता है बंजर, या जहाँ पे कोई नहीं रहता हो, वीरान, और दुनिया के बॉटम पे है, किनारे पे। अगर दुनिया को हम इस तरीके से देखते हैं तो नॉर्थ पोर्शन जो है वो उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, और साउथ पोर्शन को हम नीचे की तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे इसको बॉटम मान लिया गया है। रिमेनिंग पोर्शन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वॉल्यूम।